Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello students, how are you all doing? Hope you all are doing fine. This is class 10th and today we are going to discuss about probability. That is chapter 13 of your reader and this is part 1 of the lesson probability. So students, you might have heard about this word in your day-to-day life, that is probability. What is probability? Yes, you are right. Probability is nothing but, yes, most likely, probably, right? So luckily, probably, these are the words you have already learned in your day-to-day life, right? Likely, possibly, these are can be replaced for probability, right? Okay, probability is nothing but the chance of an occurrence of something. If I define probability in exact words, it can be said as chance of an occurrence of an event. Okay, chance of an occurrence of event. What do you mean by this? Yes, so this means that if suppose you are playing a game. Okay, I want to explain you with this with an example. If suppose you are playing a game. If you're playing a game, you might even win, right? You might win or lose, right? So, what are the chances that you will win? Chance कितना होगा कि आप win हो सकते या what are the chances to lose? तो 50% chance होता है आप या तो जीत सकते हैं या तो हार सकते हैं, right? Yes, so that is the probability. So, probability is nothing but chance and of chance of an occurrence of an event कि कोई इवेंट को अकर होने में कितने चांसेस है. So why is there a need to find a probability? Yes, you may have this question, right? कि क्या जरूरत है हमको probability find करने की. So what is the use of probability in our day-to-day life situations? Yes, I will tell you that. So probability is used in finding weather conditions, right? You may listen in day-to-day life situations of yours, right? So today the weather forecast is this and this. So how do they know that? How do they know that? They have calculated the probability of the occurrence of that event so that they can tell you the weather would be likely to rain, right? The weather, there is a thunderstorm in your area. You might have heard all these things. So how do they all know this? From where do these things come from? So they are finding the probability of an occurrence of an event actually, right? So sometimes you may hear that heavy rainfall is going to occur in your area, so please stay at home, right? These notifications come in your phone also, right? So you have seen these things in day-to-day life situations. This is nothing but they are finding the probability of that event and telling you that. That doesn't mean that the event will 100% occur. उसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कोई मौसम वेदर फोरकास्ट ने ये कहा कि देयर इज लाइकली टू रेन, सो दैट डजंट मीन इट विल रेन एंड इट हैज टू रेन. नो, सो दैट मीन्स दैट देयर आर मेनी चांसेस टू रेन. देयर आर मोर चांसेस टू रेन. सो दिस इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी. सो नाउ I think you are quite clear about this word probability. So yes, in this chapter we are going to learn how to find the probability. Yes, before finding the coming to that topic to find how to find that probability, let us first take a coin. Yes, so you all know what is a coin, right? You have seen, right? Coin, 1 रुपए का सिक्का होता है आप लोग के पास. Yes, so 1 rupee coin or 2 rupee coins, you can take any coin. Okay, so a coin has either head, right? Either head, or a coin has either a tail. Coin में या तो head होती है या तो tail होती है, right?
So when you toss this coin, what is the probability that you will get head? तो आपको जब हम टॉस करेंगे ये कॉइन को, तो आपको इधर यू विल गेट हेड और यू विल गेट अ टेल. ये तो आपको जो है क्या आएगा, हेड आएगा, राइट, या तो टेल आएगा. टॉस करना मालूम ना, कॉइन को जब हम उछालते हैं तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टॉस. व्हेन वी टॉस अ कॉइन, तो आप जब कॉइन जो है वो लैंड पे आता है, जब जमीन पे आता है, तो क्या रहता, उस पे ऊपर जो है ये तो हेड होता है, ये तो क्या होता है, टेल होता है, राइट. Yes. So when you toss a coin, you will get either a head or a tail. तो 50% चांस होता है कि आपको हेड आए, ये 50% चांस होता है कि आपको टेल आए, राइट. सो अब आप डाइस भी ले ले. एक डाइस मालूम है आपको? यस स्टूडेंट्स, यू ऑल नो व्हाट इज डाइस. यू हैव प्लेन विद दिस डाइस ऑल्सो, आई थिंक, राइट. आप लोग खेले भी होंगे इस डाइस से. डाइस किसमें खेला, सांप सीढ़ी खेले होंगे आप लोग बचपन में बहुत सारे बार, राइट. तो उसमें डाइस होता है, वो डाइस से खेलते हैं ना. तो डाइस आप उछालते हैं, उसमें आपको जो है नंबर्स आते हैं. नंबर्स यानी कि डॉट्स के फॉर्म में होते हैं, राइट. वो नंबर्स 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. तो इस तरीके से पूरे उसके फेसेस पे, ऑल द फेसेस, इट हैज डॉट्स वेर इन वी हैव 1 2, 1 डॉट्स है, ये तो 2 है, ये 3 डॉट्स है, ये 4 5 6. सो आपको जीतने के लिए पर्टिकुलर नंबर की जरूरत है, तो दैट विल बी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द. जब आप डाइस फेंकते हैं, डाइस उछालते हैं, तो आपको जो है ये तो कोई ये 6 में से कोई एक नंबर आता है, राइट. ये तो 1 आता है ऊपर, ये 2 आता है ऊपर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6. ये 6 के अलावा कोई और नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता है, राइट. सो ये तो 1 आएगा आपको, ये तो 2 आएगा, ये तो 3, ये तो 4, ये तो 5, ये तो 6. सो this is about the dice. So when you throw a dice, I'm actually giving an introduction about the coin, and when you toss a coin, what are the outcomes you will get, and when you throw a dice, what are the outcomes you will get. These are the outcomes you will get. ये outcomes होते हैं आपके, राइट. इसको क्या बोलते हैं, आउटकम्स होते हैं. ये क्या है, ये आउटकम्स होते हैं, ये आउटकम्स बोलते हैं इसको. ये तो आपको हेड आएगा, ये तो टेल आएगा. टॉस करेगा आप कॉइन, तो आप अगर डाइस थ्रो करें तो या आपको 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर आएगा. सो दीज आर द आउटकम्स व्हेन यू थ्रो अ डाइस. दीज आर कॉल्ड एज आउटकम्स. ओके. So now let us see how to find theoretically the probability. Let us take P of E. P of E means probability of an event. ठीक है. P of E मतलब क्या है, probability. ये आप याद रख लीजिए हमेशा के लिए, probability of an event to occur. ठीक है. एक event happen होने के लिए, ये event occur होने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है. तो ये फाइंड आउट करने के लिए आप हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको. क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. यस, व्हाट इज इट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बाय टोटल number of outcomes. Let us see in detail what is this. तो जब भी हम probability फाइंड करेंगे कोई भी इवेंट का, तो आप कैसा फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. जो आउटकम आपको चाहिए होगा, ये जो आप आउटकम चाह रहे होंगे, तो वो आपको ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ओके. टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं उस इवेंट हैपन होने के लिए, इवेंट अकर के, तो वो आप जो है नीचे लिखेंगे. सपोज आप एक ले लेंगे, हम ऊपर जो एग्जाम्पल लिए हैं कॉइन का, फॉर टॉसिंग अ कॉइन, विल टेक दिस एग्जाम्पल इटसेल्फ. लेट अस टॉस अ कॉइन. एक बार हम एक कॉइन को टॉस कर रहे, तो आपको होना है हेड. ऊपर क्या होना चाहिए आपको, हेड. तो वो क्या हो गया आपका, फेवरेबल आउटकम हो गया. वो क्या हो गया आपका, फेवरेबल आउटकम. क्या है फेवरेबल आउटकम आपका, हेड है.
ठीक है। आपको अच्छा, कॉइन जब हम टॉस करेंगे टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 ही होंगे, राइट? या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो कितने आउटकम्स होंगे? टोटल 2 होंगे। जब हम कोई एक कॉइन टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे? यस, 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। फेवरेबल आउटकम हमारा है हेड। तो हेड कितना हेड कितने बार आएगा? 1। एक ही बार हेड आएगा, राइट? जब हम एक बार कॉइन टॉस करेंगे तो हमारा ये तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हमको क्या चाहिए? हेड चाहिए। हेड कितने रहते हैं कॉइन में? एक ही हेड रहता, एक हेड रहता, एक टेल रहता। तो इसीलिए हेड होना है हमारे को। तो वो कितने हैं? हेड 1 है। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं? 1 है। टोटल आउटकम्स कितने हुए एक कॉइन टॉस करने के? 2 हो गए, है ना? इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ऑफ एन इवेंट। अब इसमें क्या है? हमारा इवेंट क्या है? हेड आना है हमको। क्या आना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ हेड। ठीक है, ऊपर हमको क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। हमारी हमारा इवेंट है ये, ठीक है। तो हेड कितने होते हैं? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? हमारा 1 है, ठीक है। बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जब भी हम एक कॉइन को टॉस करें तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हेड आने के कितने चांसेस है? 1/2। 1/2 इज नथिंग बट 50% चांसेस है, ठीक है। हाफ मतलब 50% चांसेस है, ठीक है। हेड आने के हमारे पास कितने चांसेस हुए? 50% चांसेस, दैट इज 1/2। That is probability of having a head on your coin. हेड आना है कॉइन पे अगर हम जब भी टॉस करेंगे तो कितना % चांस होगा? वो 50% चांस होगा, ओके। अब इसी तरीके से अगर हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ टेल, टेल होना है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ टेल। तो टेल कितने होते हैं? एक कॉइन में एक ही टेल होता है। और टोटल आउटकम्स कितने हुए? टोटल आउटकम्स 2 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ टेल आने की? हाफ हुआ। तो हाफ मतलब वो क्या है? एक्चुअली 50% है, ठीक है। 50% चांस है आपको कि वो टेल आए। जब भी आप कॉइन टॉस करेंगे तो दे आर 50% चांसेस टू गेट अ टेल एंड 50% चांसेस टू गेट अ head. So this how we find the probability of an event. Now we'll do some more examples. Let us take about dice. अच्छा, तो dice, let us see here. Dice में क्या numbers होते हैं? बताई थी मैं ऊपर. What are they? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो हमको probability find करना है of having 2, ठीक है। probability ऑफ हैविंग 2, जब भी हम डाइस थ्रो करें तो 2 आने के लिए आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप 2 कितने रहते हैं? एक डाइस में कितने 2s रहते हैं? 1:2 है, तो 1 लिखेंगे आप। तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? ये तो 1 हो सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। तो कितने आउटकम्स हुए भाई? ये पूरे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटकम्स हुए। तो बाय 6। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ 2, हाँ, when you throw a dice, so what is that probability? It is nothing but 1/6. 1/6 is the probability of having 2 on the dice. What is the probability of having 3 on a dice? कितना होगा probability of having a 3? तो 3 कितने होते हैं भाई डाइस में? एक ही होता है। और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? पूरे 6 आउटकम्स होते हैं। या तो 1 हो सकता है, या 2, या 3, या 4, 5, 6। तो 6 आउटकम्स हुए पूरे टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 ऑन योर डाइस इज ऑल्सो 1/6. इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 ऑन योर डाइस इज ऑल्सो 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ 4 ऑन योर डाइस ऑल्सो 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 on your dice is also 1/6. Why? Because you have total number of outcomes as 6. So only 1 6 you are having. So probability of having 6 on your dice is also 1/6, right? So when you add up all those probability of having 1, probability of having 2, probability of having 3, as you all will get 1/6, right? P of 1 will be also 1/6, P of 2 will be 1/6, P of 3 will be 1/6, ठीक है। P of 4, probability of having 4 will be also 1/6, probability of having 5 will also be 1/6, probability of having 6 will also be 1/6. तो ये पूरे क्या है? probabilities of each number is 1/6. तो हम अगर अब देखें, आप हर probability को आप ऐड करें,
तो ये पूरे कितने 1/6 1/6 1/6 कितने हो गए भाई 6 हो गए ना। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितने लिखी मैं 1 2 3 4 5 प्लस 1 मोर 1/6 तो अब ये क्या हो गया 1/6 प्लस 1/6 पूरे 6 डिनोमिनेटर सेम है राइट 6 एज अ डिनोमिनेटर सेम है तो हम जस्ट न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 6 विच इज नथिंग बट विच इज 1. So you can see here when we add all we get as 1 right. So these are having all the same probability right. तो ऐसे events को बोलेंगे आप elementary events. ऐसे events को क्या बोलेंगे आप elementary events. कब बोलेंगे elementary events कब बोलेंगे जब probability is same. Probability of finding each number is same here. Probability of having 1 is same as 1/6. Probability of having 2 is 1/6. 3 1/6. 4 का probability 1/6 है तो सबका probability 1/6 है right. तो अब जब add करेंगे आपको क्या आएगा 1 आएगा. तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलेंगे आप एलिमेंट्री इवेंट. एलिमेंट्री इवेंट्स किसको बोलेंगे जब आपके पास पूरों की सेम प्रोबेबिलिटी रहेंगी तो उसको क्या बोलेंगे आप एलिमेंट्री इवेंट्स बोलेंगे. और विल डू वन मोर एग्जाम्पल. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल नाउ. ओके सपोज वी थ्रो अ डाइस. एक डाइस को हम थ्रो करें. ओके सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती जो हमको नंबर चाहिए ग्रेटर देन 4. जब हम एक डाई को थ्रो करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको 4 से बड़ा नंबर आए. व्हाट इज द नंबर ग्रेटर देन 4. जब हम डाइस को एक थ्रो करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ग्रेटर देन 4 आए नंबर ये हमको मालूम करना है. तो 4 से बड़े नंबर कौन से होते हैं डाइस जब डाइस में 5 होता है और एक होता है 6 राइट. ये तो 5 होगा ये तो 6 है. तो ये 5 और 6 क्या है हमारे फेवरेबल आउटकम्स है. 5 और 6 क्या है हमारे फेवरेबल आउटकम्स है. कितने हैं 5 और 6 फेवरेबल आउटकम्स है. कितने हैं वो 2 है ना. 5 है एक और एक 6 है तो कितने हुए हमारे फेवरेबल आउटकम्स 2 हुए. अच्छा टोटल आउटकम्स आपको मालूम है जब भी हम कोई डाई थ्रो करे तो टोटल आउटकम्स तो मालूम है आपको कितने होते राइट. टोटल आउटकम्स तो 1 होगा ये तो 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है ना. तो टोटल आउटकम्स तो हुए 6. तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमको ग्रेटर देन 4 आए नंबर. तो प्रोबेबिलिटी P ऑफ E फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स राइट. तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे यहाँ पर 2 है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 6 है तो 2/6 है. व्हाट इज 2/6. 2 1s are 2 2 3s are 6 विच इज नथिंग बट 1/3. तो क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 6 आने की ग्रेटर देन 4 कोई नंबर आने की तो 1/3 हो गई प्रोबेबिलिटी. अच्छा अब मैं ये बोलूं आपसे दूसरा सवाल ये है मेरा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4. ठीक है लेस देन 4 और इक्वल टू 4 ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है. ठीक है प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमको ऐसा नंबर आए जो कि 4 से कम हो या 4 के बराबर हो लेस देन 4 और इक्वल टू 4. तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए भाई फेवरेबल आउटकम्स यानी कि हम जो चाह रहे आउटकम्स कौन से आउटकम चाह रहे हैं हम लेस देन 4 चाह रहे तो या इक्वल टू 4 चाह रहे तो कौन से हुए भाई वो 1 हुआ 2 हुआ 3 4 राइट. ये 1 2 3 4 ये हमारे फेवरेबल है. अभी यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं भाई वो 1 2 3 4 हो गए ये है ना. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जब भी एक डाई थ्रो कर रहे हैं आप तो एक ही चीज रहती टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो एक ही होता. पूरे 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते है ना. कोई भी डाई जब आप थ्रो करते तो आउटकम्स तो पूरे 6 आ सकते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता तो वो हुए हमारे टोटल आउटकम्स. अब यहाँ पर अगर हम P ऑफ E फाइंड आउट करें तो क्या होगा यहाँ पर 4/6 होगा है ना 4/6 होगा.
तो 4/6 बोले तो क्या हो गया, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर क्या है हमारे 2/3। तो क्या है भाई प्रोबेबिलिटी, लेस देन 4 और इक्वल टू 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। अच्छा, ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी भाई 1/3, और लेस देन 4 या इक्वल टू 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। अब यहां पर आप देख रहे कि दो प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। यहां पर ऊपर के एग्जाम्पल में देखे थे आप, पूरे प्रोबेबिलिटीज क्या थे, सेम थे, है ना। 1 आने की प्रोबेबिलिटीज, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूरों में 1/6 आ रहा था आपको, है ना। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग है, यहां पर क्या है 1/3 है for having greater than 4, for a number having greater than 4, और less than 4 equal to 4 आने के लिए आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है भाई यहाँ पर 2/3 है यहाँ पर, है ना। तो ऐसे प्रोबेबिलिटीज को बोलेंगे, हाँ ऐसे इवेंट्स को बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, जिसमें डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आते हैं आपके। तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोलेंगे हम, ओके आई विल टेक द नेक्स्ट पेज। ओके, ऐसे इवेंट्स को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट complementary events and elementary events today, right? So this was it for today. Inshallah we'll continue in the next part. So let us quickly revise what we have learned today. Okay, so what is probability, students? Probability is nothing but chance of an occurrence of an event. So when you toss a coin, you may get head or you may get a tail, right? When you throw a die, you may get all these numbers up till 6, right? So these are called as outcomes. इसको क्या बोलेंगे हम, outcomes बोलते। तो क्या जब भी हम कोई probability of an event find कर रहे हैं, तो how to find that? What is the formula? Number of favorable outcomes by total number of outcomes. तो ये आपको याद रखना है, number of favorable outcomes by total number of outcomes. So P of E is nothing but probability of an event. कोई event अकर होने के लिए कितनी probability है मालूम करने के लिए theoretically आप इस तरीके से find out करते हैं, ठीक है। favorable outcomes मतलब जो outcomes आप चाह रहे, total outcomes मतलब जितने outcomes उसमें आ सकते हैं, okay, उस event में हो सकते हैं, ठीक है। So we have found the probability of head, we have found the probability of tail. We have also learned how to find the probability of an event occurring 1, 2, 3, 4, 5 and 6 when you throw a dice. Here you can see that all the probabilities are same. So when you add it up all, you will get as 1, right? So this is called as elementary events because you are having the same probability. But in the next example, you have seen that there are different probabilities you are getting. Here you have got 1/3, यहाँ पर आपको 2/3 आया, right? So different probabilities आ गए आपको। तो this is called complementary events. तो यहाँ पर same probability नहीं होती है, इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। लेकिन आप जब 1/3 और 2/3 को ऐड करेंगे तब भी आपको 1 ही आएगा आंसर, याद रखिए। 1/3 और 2/3 को जब हम ऐड करते तब भी हमको 1 आता आंसर, लेकिन प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 2/3 है, तो इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। जब हमारे प्रोबेबिलिटीज पूरे इवेंट होने के सेम वो है, चांसेस है, सेम अकर प्रोबेबिलिटीज है आपके पास, तो उसको बोलेंगे हम एलिमेंट्री इवेंट्स। सो टुडे वी हैव लर्नड हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट आर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Please do subscribe my channel and hit the like button if you really like this video.